Hello, dear student. Today we will learn what is the use of this subject, digital electronics of logic design. So my name is Madhuri Kaude. So I am giving today I will give the overview of these subjects. Okay. So this is my blog link, madhurikaude.wordpress.com. So here you will give all the information on this subject. So today we will see prerequisite test, objective and outcome, where we join this Google Classroom, where this study material available, what are the syllabus of DLD, and main point is what is the use of this DLD subject. Okay. After that, we will study about the digital system, what are the logic gates, number system. So start. So this is nothing but the teaching scheme of this subject. So these subjects having the 3 credits. So it having also the mid-sem exam and end-sem exam. Okay, so prerequisite subject is the basic electronics EJ. This is the first year subjects. Okay, for the prerequisite test, please click on this link. Or companion course is the it having the digital electronics lab. So these are the objective. Objective, that means what are the aim to behind this subject. So first objective is to study the number system and develop the skill for design and implementation of combinational logic circuit and sequential circuit. So firstly, we study about the number system, about the combinational circuit and sequential circuit. Next, we understand the functionality of these logic families. After that, introduce the programming logic devices, ASM chart, and after that introduce the microprocessor. Lastly, after these courses, student will learn about the simplify the Boolean expression using K-map, how to use K-map, how to solve this expression. Student will learn this about this K-map. After that, student learn about combinational circuit, sequential circuit, ASM, PLD devices, then logic families क्या होती हैं. After that, student learn about explain the organization and architecture of computer system. Next one is this is nothing but my blog address. So for the finding the details of DLD subject, first go click on student corner and then click on the SC Computer Theory DLD. So these are nothing but the structure of this subject, digital electronics and logic design. So these are the 6 units. So her units having the 7 hours dedicated by university. So first unit is the minimization technique, second unit is the combinational logic design, and third unit is the sequential logic design. Fourth unit is the algorithm, state machine, and PLD. Fifth is the logic family, and last unit is the introduction to computer architecture. So now we concentrate on the first unit, minimization techniques. So in minimization techniques, firstly, minimization of Boolean function using the K-map up to 4 variable, Quine-Maklowski method, and representation of sign number. So in that sign magnitude, representation, then 1's complement, 2's complement, soft form, pause form, and again solve this using the K-map. So before start this unit, we required some basic concepts. Okay. So what is meant by system? So system, or we can say the circuit, means it defined as the physical device or group of device which perform the required operation on the signal applied it into it, can either be analog signal or digital signal. That means सिस्टम और सर्किट इज नथिंग बट द फिजिकल डिवाइस. कुछ एक डिवाइस है जहां पर कुछ इनपुट सिग्नल आने वाला है और उसके ऊपर हम प्रोसेस करने वाले. सो इट्स दिस सिग्नल्स मे बी एनालॉग सिग्नल और दिस सिग्नल मे बी डिजिटल सिग्नल्स. Okay, so this for processing, this system having a 2 types, analog system and digital system. For analog signal, we require the digital system, and for digital signal, we require the digital system.
So in this subject we only concentrate on the digital system because our subject name is the digital system. So what is meant by analog signal? अभी मैं जो बोल रही हूँ, जो कन्वर्जन है मेरा is nothing but the analog signal. Okay, and digital signal it having the fixed information, okay, in the form of 0 and 1 distinct value in the digital signal. Analog signals information always vary. ओके सो इसलिए वो फिक्स इंफॉर्मेशन नहीं, हम उसको 1 या 0 में नहीं कैलकुलेट कर सकते, या फिक्स ऐसे ही वैल्यू आएगा ऐसे नहीं बोल सकते. ओके दैट्स व्हाई एनालॉग सिग्नल पर प्रोसेस करना डिफिकल्ट होता है, लेकिन डिजिटल सिस्टम की वैल्यू जो भी वो फिक्स है 0 या 1, इसलिए उसके ऊपर प्रोसेस करना इजी है. इसीलिए कंप्यूटर में हर टाइम डिजिटल सिस्टम यूज करते हैं. और यहाँ पर हमारा जो सब्जेक्ट है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड लॉजिक डिजाइन, अब इस सब्जेक्ट का कंप्यूटर में यूज क्या है? कंप्यूटर में इसीलिए यूज है बिकॉज कंप्यूटर में जो भी इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं हम डिजिटल फॉर्म में स्टोर करते हैं, 1 and 0 फॉर्मेट में स्टोर करते हैं, राइट. सो कंप्यूटर स्टूडेंट को पता होना चाहिए कि हम जो इंफॉर्मेशन प्रोसेस कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं, वो कैसे डिजिटली स्टोर हो रही है, 1 and 0 फॉर्मेट में कैसे प्रोसेस होती है. सो वो सीखने के लिए हम ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स ये सब्जेक्ट पढ़ रहे. तो इसलिए हमारा यहाँ पर हर टाइम कॉन्सेंट्रेट होगा कि डिजिटल. ओके सो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स इज द फील्ड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इन्वॉल्विंग द स्टडी ऑफ डिजिटल सिग्नल. So signal is nothing but the some physical quantity which contains some information which is the function of one or more independent variable. So analog signal में more independent variable होते हैं, लेकिन digital signal में only 2 variables होते हैं, 1 and 0. So digital signal having finite number of distinct value. Digital signal are not continuous signal. जैसे कि analog signal continuous signals होता है, लेकिन जो digital signal है वो उसमें फिक्स वैल्यू रहती है, फाइनाइट वैल्यू रहती है, एक तो 0 आइदर 0 और आइदर 1. सो इसीलिए डिजिटल सिग्नल को हम बाइनरी वैल्यू बोलते हैं, क्योंकि बाइनरी में मतलब 2, बाइनरी मतलब एक तो आइदर इट वैल्यू इज 0 और 1. So analog system processes the time varying signal that can take any value across the continuous range of voltage. So analog signal में time varying signal आता है और डिजिटल सिग्नल में कौन से टाइप का वैल्यू आता है? डिस्टिंक्ट टाइप की वैल्यू का सिग्नल इसमें आता है. Okay, so district value is nothing but the 1 or 0, and we can say the on and off, high and low, true and false. So ये लास्ट तक याद रखना, ये पूरे यूनिट में. अगर मैं 1 बोलती हूँ तो इसी का मतलब ऑन रहेगा, हाई रहेगा, ट्रू रहेगा. अगर मैं 0 बोलती हूँ तो उसी का मतलब ऑफ रहेगा, लो रहेगा, फॉल्स रहेगा. तो यहाँ पर बाइनरी सिग्नल में ये हर टाइम 2 वैल्यू टाइप, एक तो 1 0 बोल सकते हैं, ऑन ऑफ बोल सकते हैं, हाई लो बोल सकते हैं, या ट्रू एंड फॉल्स बोल सकते हैं. सो दोनों में क्या डिफरेंस है एनालॉग वर्सेस डिजिटल? तो मोस्ट ऑब्जर्वेबल आर एनालॉग, बट द मोस्ट कन्वीनियंट वे टू रिप्रेजेंट एंड ट्रांसमिट द इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिकली इज अ डिजिटल. सो कन्वीनियंट कौन सा है? डिजिटल है, राइट. तो दोनों को क्या होता है, एनालॉग एंड डिजिटल, डिजिटल एनालॉग कन्वर्जन इज एसेंशियल. अगर मैं एनालॉग कन्वर्जन कर और मुझे डिजिटल चाहिए तो मुझे वो दोनों भी कन्वर्जन क्या होगा? रिक्वायर्ड रहेगा. सो ये कन्वर्जन हुआ, ये यहाँ पर बेसिक हुआ कि हम डिजिटल सिग्नल के लिए भी रिक्वायर्ड द डिजिटल सिस्टम. नाउ ये इंफॉर्मेशन है तो कौन से भी इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट में एक कुछ तो कंपोनेंट रिक्वायर्ड होता है. ओके उसको बोलते हैं लॉजिक गेट्स. तो लॉजिक गेट्स क्या होते हैं? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक्स से सबसे इंपॉर्टेंट है. सो लॉजिक गेट्स आर बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एनी डिजिटल सर्किट. क्योंकि हमारा भी कॉन्सेंट्रेशन किसके ऊपर है? डिजिटल सर्किट के ऊपर है. सो डिजिटल सर्किट में क्या रिक्वायर्ड होता है? लॉजिक गेट्स. सो इसीलिए यहाँ पर डेफिनेशन है लॉजिक गेट्स आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एनी डिजिटल सर्किट. So logic gates is a simple switching circuit that determine whether an input pulse can be passed through the output in the digital circuit. So logic gates ये भी क्या है? एक स्मॉल एक सिंपल क्या है? एक सर्किट है, ठीक है, जिसके ऊपर एक इनपुट आने वाला है और जो क्या करेगा? आउटपुट सिग्नल पास करेगा. So these are the types of logic gates: basic logic gates, universal logic gates, other logic gates. So basic logic gates में again 3 types है: AND gate, NOT gate, OR gate. और universal में NAND gate, NOR gate. और other logic gates में आता है XOR gate, और we can say the derived gate, XOR gate and XNOR gate. So logic gates
बेसिक लॉजिक गेट्स का यूज होता है कि आर द फंडामेंटल लॉजिक गेट्स यूजिंग विच द यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स एंड अदर लॉजिक गेट्स आर कंस्ट्रक्टेड। जिससे क्या होता है, लॉजिक गेट से जो फंडामेंटल है, जिससे हम यूनिवर्सल एंड दूसरे लॉजिक गेट्स क्या कर सकते हैं, कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। यूनिवर्सल का मीनिंग क्या आता है, कैपेबल ऑफ इंप्लीमेंटिंग द एनी बुलियन फंक्शन। सो कौन से भी बुलियन फंक्शन इंप्लीमेंट करने के लिए हम ये यूनिवर्सल लॉजिक गेट यूज कर सकते हैं। सो ये है बेसिक गेट। सो फर्स्ट है बफर। बफर में सिर्फ जो भी इनपुट है वो आउटपुट के साइड में रहेगा। आप ट्रुथ टेबल में, सो यहाँ पर मैं थोड़ा सा मेंशन करती हूँ कि दिस इज नथिंग बट द गेट सिंबल, इक्वेशन ऑफ गेट सिंबल, इक्वेशन ऑफ गेट, and this is the truth table. So what is mean by truth table? So a truth table having the combination of input and output. So जो input है उसी के करस्पॉन्डिंग आउटपुट यहाँ पर मेंशन होते हैं। सो दिस इज नथिंग बट द ट्रुथ टेबल। सो ट्रुथ टेबल में आप फर्स्ट साइड जो भी वहां पर इनपुट आता है और अकॉर्डिंग टू इनपुट्स क्या आउटपुट आएंगे वो यहाँ पर हम मेंशन करते हैं। तो जनरली जो भी ABCD जो वेरिएबल है हम एज ए इनपुट में यूज करते हैं, एंड Z, F ये हम किस में, Y ये हम किस में यूज करते हैं, एज ए आउटपुट साइड में यूज करते हैं। लेकिन अगर आप आउटपुट में भी C यूज करते हैं तो कुछ इश्यू नहीं है, सिर्फ हमें वहां पर मेंशन करना पड़ेगा these are the input and these are the output. So बफर में सिर्फ जो इनपुट है वो वही आज आउटपुट आएगा। अब एंड गेट, एंड गेट में एंडिंग मतलब क्या, मल्टीप्लीकेशन यहाँ पर होता है, ऑरिंग मतलब प्लस होता है, एक्सऑर मतलब क्या, जहां पर अगर दोनों भी सेम है तो आउटपुट आता है 0। प्लस में देख सकते हैं आप 0+0, 0 1 1 1। यहाँ पर 1+1 मतलब कभी 2 नहीं होगा, 1+1 का मीनिंग क्या आएगा, 1 ही आएगा। देन अब इन्वर्टर है, इन्वर्टर में एक का जो भी अगर इन्वर्टर है तो वो क्या करेगा, उसको निगेशन करेगा, मतलब 0 का 1 करेगा, 1 का 0। नैंड गेट का जो टेबल है, जो एंड गेट है, एंड को अगर हमें और गेट अगर अटैच करती हूँ, इसको इन्वर्स करती हूँ तो मुझे मिलेगा नैंड गेट, और को अगर इन्वर्स करती हूँ तो मुझे मिलेगा नॉर गेट, और एक्स नॉर मतलब एक्स और को अगर इन्वर्स करती हूँ तो वी गेट दी एक्स नॉर गेट। Now number system. Number system मतलब क्या? In digital electronics, the number system is used for the representing the information. So digital electronics में number system का use किसके लिए होता है कि जो information उसको represent करने के लिए होता है। कि अगर मुझे 5 represent करना कंप्यूटर में तो वो किस में होगा, तो we require the some number system. So there are 4 number system में डेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम एंड हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। सो अभी तक जो हमें नंबर सिस्टम पता है वो रोमन नंबर सिस्टम पता है, या जो अभी अगर मैं रोल नंबर अगर लेती हूँ सपोज 1 नंबर 2 नंबर, या हम जो पैसे काउंट करते हैं तो वो डेसिमल नंबर में हम बोलते हैं 1000 2000, तो वो हो गए हमारे डेसिमल जो सबको पता है। तो डेसिमल नंबर सिस्टम हमें पता, हम स्कूल में जो नंबर सिस्टम सीखे वो नंबर सिस्टम है। तो नंबर सिस्टम का काम क्या होता है कि उसकी एक फिक्स टेक्निक होती है, कुछ नंबर्स होते हैं और वो नंबर से हम क्या करते हैं, बड़ा वाला नंबर को क्या करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। तो यहाँ पर नंबर, अब हमें सिर्फ कॉन्सेंट्रेट ये 4 नंबर सिस्टम कर। डेसिमल नंबर सिस्टम इसके लिए क्योंकि ह्यूमन कैन बी अंडरस्टैंड ओनली डेसिमल नंबर सिस्टम, बट कंप्यूटर कैन ओनली अंडरस्टैंड द बाइनरी नंबर सिस्टम। ओके, और इन बिटवीन अभी ये 2 नंबर सिस्टम का क्या यूज है, अगर ये यूजर अंडरस्टैंड कर रहा है या कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है, ये दोनों का यूज इसके लिए है, इसकी साइज बहुत बड़ी हो जाएगी तो ये क्या करेगा, इसमें सेव करेगा और देन इसमें कन्वर्ट करेगा, राइट। सो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम भी अभी माइक्रो प्रोसेसर में वगैरह यूज होती है, राइट। देन ऑक्टल नंबर सिस्टम, तो 1 बाय 1 हम चेक करेंगे। सो बिफोर स्टार्टिंग नंबर सिस्टम, यहाँ पर एक लिखा है देखो, डेसिमल नंबर सिस्टम में लिखा बेस 10। बेस का एक अनदर वर्ड है रेडिक्स। तो रेडिक्स और बेस मतलब सेम थिंग। 10 का मीनिंग है कि इसमें 10 अलग अलग सिंबल रहेंगे, अलग अलग डिस्टिंक्ट वैल्यू रहेंगे। जैसे बेस 10 है मतलब 0 to 9, ये से अलग अलग वैल्यू से ये डेसिमल नंबर सिस्टम रिप्रेजेंट होगा। बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस क्या है 2, मतलब इसमें क्या रिप्रेजेंट होगा, 0 and 1 रिप्रेजेंट होगा। मतलब ये जो भी बाइनरी नंबर सिस्टम है वो सब 2 नंबर से डिवाइड होगा, 0 and 1। ऑक्टल नंबर सिस्टम में क्या होगा, ऑक्टल में 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे 7 नंबर से ऑक्टल नंबर रिप्रेजेंट होगा। हेक्साडेसिमल में क्या होगा, 0 to 9 ये 10 नंबर एंड 8 to 8, मतलब 10 के बाद अगर नंबर रिप्रेजेंट करना है तो वो थ्रू दी ABCDEF यहाँ पर क्या होगा, रिप्रेजेंट होगा। तो थ्रू द एग्जाम्पल हम देख सकते हैं अगेन ये टेबल में,
डेसिमल का बेस 10, सिंबल 0 to 9। तो ये हम ह्यूमन यूज करते हैं, लेकिन ये कंप्यूटर यूज करता है क्या? नहीं। बाइनरी 2, ये यहाँ पर ह्यूमन यूज नहीं करता लेकिन कंप्यूटर यूज करता है। यहाँ पर भी ऑक्टल, ये क्या करता है? यहाँ पर तो ये ह्यूमन भी यूज नहीं करता और कंप्यूटर भी यूज नहीं करता। तो इसका यूज क्या है? तो ये अगेन ये हम यूजिंग दिस नंबर सिस्टम हम उसको स्टोर करके क्या कर सकते? कन्वर्ट कर सकते हैं। तो नाउ अब हमें कैसे रिप्रेजेंट करना है नंबर को? अगर डेसिमल नंबर 0 है तो बाइनरी नंबर भी क्या आएगा? 0। ऑक्टल भी उस केस में आएगा 0, हेक्साडेसिमल में आएगा 0। अगर ये 1 है तो बाइनरी भी क्या आएगा? 1, ऑक्टल 1 और हेक्साडेसिमल 1। अभी 2, 2 कैसे बाइनरी में रिप्रेजेंट होगा? 1 एंड 0। अब ये कैसे आएगा? तो यहाँ पर एक पोजीशन वेट आ जाता है, यहाँ पर आता है 1 2। जस्ट अ मिनट में एनोटेशन से आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। सो यहाँ पर आएगा 1, यहाँ पर आएगा 2, यहाँ पर आएगा 4 और यहाँ पर आएगा 8। 8 4 2 1 ये पोजीशन में। अभी अगर 2 है तो 2 पर 2 के यहाँ पर क्या चाहिए? 1 चाहिए। अगर 3 है तो 2 + 1 3 होगा। सो 1 + 1 मतलब 2 + 1 क्या होगा? 3, इसलिए ये है। अभी 4 है तो 4 के नीचे क्या चाहिए? 1, बाकी जगह पर क्या चाहिए? 0। अगर 5 है तो 1 एंड 0 1 मतलब ये 5 बनेगा। अभी अगर 6 चाहिए तो 4 + 2, तो दोनों जगह पर क्या करना पड़ेगा हमें? 1 1 करना पड़ेगा। देन इट विल बी दी 6। देन 7 है तो 4 2 प्लस। ऐसे हम कहाँ तक नंबर कर सकते हैं इसमें? अप टू 15 8 4 2 1 पोजीशन से हम क्या कर सकते हैं? 6। अगर मुझे 16 के आगे चाहिए तो यहाँ पर क्या होगा? 16। अगेन यहाँ पर क्या होगा? 32। सो यहाँ से 2 का जो वेट है उससे 2⁻0 2⁻1 2⁻3 2⁻4 2⁻6 ऐसे। क्यों 2 का ही बेस लिया है? क्योंकि बाइनरी का बेस क्या है? 2। ओके, नेक्स्ट। अब यहाँ पर एक एग्जांपल ले रहे हैं हम। 25 का बेस, यहाँ पर बेस हमेशा ऐसे साइड लास्ट इसमें लिखते तक कि वो पता चल जाता हमें कि वो नंबर कौन सी नंबर सिस्टम को बिलोंग कर रहा है। जैसे 2 है मतलब बाइनरी है, 8 है मतलब ये क्या है? ऑक्टल है, 16 है मतलब क्या है? ये हेक्साडेसिमल है, और ये 10 है मतलब क्या है? ये डेसिमल है। अब यहाँ पर अगर कन्वर्ट करना 125, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 10⁻0 मतलब ये क्या होता है? यहाँ पर बेस। तो हम इसको क्या कर सकते हैं? तो ये नंबर कन्वर्जन में ये मेथड आ जाता है, लेकिन नंबर कन्वर्जन अभी हमें उसको यूज नहीं करना है। अगेन अगर नंबर को कैसे, जैसे मैंने लास्ट स्लाइड में भी बताया था कि कैसे नंबर को कैलकुलेट कर। जैसे 25 है तो मुझे 25 का बाइनरी नंबर लिखना है, तो कैसे लिखेंगे? 1 2 4 8, ये मैंने पोजीशन वेट बताया था। अभी ये नंबर बड़ा है तो और 16 आएगा, तो हमें उसके एडिशन करना है। 16 + 8 + 1 इट विल बी 25। तो वहां पर ही आएगा 1101। अगर मुझे 26 7 8 लिखना है, 27 लिखना है, तो यहाँ पर क्या आएगा उस केस में? 1। ओके, देन बिट्स मतलब क्या? 1 0 और 1 इसको बोलते हैं बिट्स। निबल मतलब क्या? 4 बिट्स मतलब क्या आता है? निबल। बाइट मतलब क्या? 8 बिट्स आता है। तो ये बिट्स का एग्जांपल है। वर्ड्स, सो 16 बिट्स मींस एक वर्ड, 32 बिट्स मतलब डबल वर्ड। तो हाउ टू राइट बाइनरी नंबर? तो ये पोजीशन वेट हमेशा यूज करते हैं। अगर मुझे 4 लिखना है तो क्या लिखेंगे? 100। 5 लिखना है तो 1010। 9 लिखना है तो 8 एंड 1 तो 9 बनेगा। 12 है तो ऐसे इस टाइप का आएगा। अब व्हाट इज मीन बाय एलएसबी एंड एमएसबी? एलएसबी मतलब क्या? लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट, जिसका पोजीशन वेट सबसे कम होता है, और मोस्ट सिग्निफिकेंट जिसका पोजीशन वेट सबसे ज्यादा होता है, राइट? सो ये आता है एलएसबी बिट। अगर वो डिजिट है तो उसी को बोलते हैं लिस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, और यहाँ पर बोलते हैं मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। तो अभी अगर ये बाइनरी नंबर है सपोज 5 0 1 0, तो यहाँ पर जो भी डी है वो क्या है? आपका एलएसबी। और ये क्या आया है? कौन से साइड में? एमएसबी साइड में आया। अब ये बाइनरी नंबर यहाँ पर लिखे हैं अप टू 15।
ओके, सो आज के लिए इतना ही. नेक्स्ट टाइम we will study how to create the truth table for 2 bits, 3 bits, 4 bits. Next, what is mean by digital system? What mean by the logical variable? So next, we will study this topic in next session. So thank you all of you.